پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک، جلالی اور خوبصورت ترین نام میں آج شب آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے اور خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ انمول اور خوبصورت لمحات میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں خداوند نے بخشے ہیں کہ ہم کلام مقدس کی ان خوبصورت ترین باتوں کو سیکھنے والے ہو سکیں۔ یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ پر ہم بات چیت کرتے سیکھتے ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے اس کتاب کے مکمل کرنے کے قریب ہیں، پھر بھی کچھ ٹائم تو ضرور ہمیں لگے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 20 باب میں ہیں اور ابھی تک 20 باب کی 8 آیت تک ہم نے مل کر غور و خوض کیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں 9 اور 10 آیت رکھوں گا۔ میرے عزیزو، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ دنیا اب اختتام کی طرف جا رہی ہے، اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ پریچنگ بہت، ٹیچنگ بہت میڈیا کے ذریعہ سے اور ایون لائیو پروگرامز کے ذریعہ سے بھی، لیکن بے دینی بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور مجھے کتاب مقدس کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ ایسے ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ بات مجھ پر اور آپ پر فٹ آتی ہو، کہ وہ دین داری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کو مختلف ذرائع سے سیکھتے ہیں۔ کیا ان باتوں کا ہماری شخصی روحانی زندگی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے، کوئی چینج آتی ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، یا جہاں تھے وہاں کے وہاں ہی ہیں برسوں بعد بھی؟ یہی ایک اہم ترین سوال خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھ سے پوچھتا ہے، اور میرے بھائی آپ سے، اور میری بہن آپ سے۔ آپ جو ہمارے ساتھ نہ صرف کرائسٹ ویژن یورپ پر بلکہ فیس بک پہ کے کئی ایک پیجز پر، یوٹیوب چینل اور واٹس ایپ میں خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، عزیزوں میری درخواست ہے ہم کان لگا کر خدا کے باتوں کو سنیں اور دعا کریں کہ اے خدا مجھے تبدیل کر، میں اپنے لیے کروں گا، آپ اپنے لیے کریں۔ ہم کتنا اور جی لیں گے؟ اب لازم ہے کہ ہم خدا کو اپنے دل میں اہم ترین مقام دیتے ہوئے اس کی پیروی میں ہو چلے۔ ہم سیکھ رہے تھے خداوند کے مقدس کلام سے 1000 سالہ بادشاہی کے، اور اس کے بعد شیطان کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑے جانے سے متعلق، اور یہ کہ جب وہ
छोड़ा जाएगा तो फिर से वो कौमों को गुमराह करेगा। ये 1000 साला बादशाही के बीच की बात हो रही है। इससे पहले, इस 1000 साला बादशाही से पहले वो हैवान और झूठा नबी वो ऑलरेडी जहन्नम रसीद हो चुके हैं, सजा मिल चुकी है। इससे पहले एक जंग हो चुकी है जिसको हम हरमजदून की जंग के तौर पर देखते हैं, जिसके लिए परिंदों को खुदा ने हुक्म दिया और उन लाशों के गोश्त को नोचने के लिए वो वहां पर खुदा के हुक्म से, हुक्म इलाही से इसराइल और गिरदोनवा में पहुंच गए थे। अगरचे ये जंग अभी होनी है, अभी हुई नहीं है, लेकिन इसके बाद हम कुछ और भी देखते हैं। यह जंग वो जूज और माजूज से मुताल्लिक है जिस पर हमने गुजरी बाइबल स्टडी में गौर किया था कि इतनी ज्यादा ये फौज यरूशलेम और इसराइल के उस छोटे से खित्ते को घेर लेगी, इतनी बड़ी तादाद में कि जैसे समुंदर की रेत है। ये इस्तिलाह, मुहावरा इस्तेमाल हुआ है कि ला तादाद फौजें जमा होंगी इसराइल के बरखिलाफ और खुदा के ममसू के बरखिलाफ हमला आवर होने के लिए। आयत 9 में लिखा है, और वो तमाम रूए जमीन पर फैल जाएंगी। कौन? वो कौमें जिनको अबलीस गुमराह करेगा, जूज और माजूज और बेशुमार और लोग। सारी जमीन से यहां पर मुराद यह पूरा कुर्राए अर्ज नहीं है। इस सारी जमीन से मुराद इसराइल और इसराइल के गिरदोनवा के इलाके उसमें शामिल है। इसराइल खुद पूरे का पूरा उस लपेट में होगा। लेकिन याद कीजिए, 1000 साला बादशाही से पहले की बात है। यह जूज और माजूज से मुताल्लिक जंग, लेकिन 1000 साला बादशाही के बीच में क्या होगा, मैं सिर्फ एक आयत तलावत करूंगा। यसाया नबी का सहीफा और इसका 2 बाब और उसकी आयत 4 लिखा है, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार न चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ये 1000 साला बादशाही में अमन व अमान की बात हो रही है। लेकिन यह भी बताता चलूं कि इस 1000 साला बादशाही के बाद, अगरचे समझने के लिए मैंने गुजरे बाइबल स्टडी में जो एक हफ्ता पेशतर थी, मैंने कहा था कि एक जंग 1000 साला बादशाही के एंड पर है। असल में वो जंग वो वाली जंग नहीं जो 1000 साला बादशाही से पहले होगी, जिसकी बाबत थोड़ी देर पहले मैंने बात की और माजी में आप हमारे साथ मिलकर सीख रहे थे। वो नहीं होगी। लेकिन एक और बात यहां पर गौर तलब है, उस वक्त 1000 साला बादशाही के इख्तिताम पर यूं कहना चाहिए कि अबलीस की आखिरी शिकस्त
होगी। हम बात करेंगे इस पर आज भी और आइंदा भी। लेकिन 1000 साल बादशाही के दौरान कोई जंग नहीं होगी। दूसरी बात, इस बादशाही के इख्तिताम पर याद रखिए कि इब्लीस को आखिरी शिकस्त होगी। और नंबर 2, जंग जिसको हम कहते हैं वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। बात करेंगे कि वो कैसे। और हम जूज और माजूज और दीगर अलहाक करने वाली अफवाज को इसराइल और इसराइल के गिरदो नवा को घेरे हुए देखेंगे। और यह कब की बात है? एक तो 1000 साल बादशाही से पहले जंग हो चुकी है। अब फिर इब्लीस अफवाज को जमा करेगा जब उसको थोड़ी सी रिहाई मिली, गुमराह करेगा मसीह के खिलाफ और इसराइल के बरखिलाफ। अब याद करने की बात क्या है, गौर तलब है, बड़ी अहम तरीन, और वो ये कि ये जो इसकी जंग के लिए गोया वो तैयार होगा, लेकिन वो जंग कर नहीं पाएगा। यहां पर लिखा है, और वो कौमें तमाम रूए जमीन पर फैल जाएगी। मैंने बताया कि रूए जमीन से मुराद ये पूरा ग्लोब नहीं है, इसराइल और उसके गिरदो नवा के इलाके। और वो क्या करेंगी? मुकद्दसों की लश्करगाह। लश्करगाह वैसे तो जहां पर लश्कर रहता है, बसेरा करता है, आरजी मकाम, उसकी तरफ इशारा है। लेकिन लश्कर आम तौर पर मुहावराती जबान में भी, इस्तिलाही जबान में भी यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जैसे उर्दू जबान एक लश्कर है। अब उर्दू जबान में कोई सिपाही तो नहीं है, सोल्जर तो नहीं है, लेकिन उसको इस्तिलाही माना में इस जबान को लश्कर के तौर पर कहा गया, क्योंकि कई जबानों का यह मुरक्कब है। लेकिन यहां जो बात हमारे लिए बड़ी गौर तलब है वो ये है कि मुकद्दसों की लश्करगाह। एक तो ये आलम लोग दो बातें करते हैं। एक तो ये कि मसीह जब आसमान से मुसीबत के जमाने के बाद 1000 साल बादशाही के शुरू में आएंगे तो वो कलीसिया और दीगर मुकद्दसीन को भी अपने साथ लेकर आएंगे। ये एक मुकद्दसीन मुमकिन है। और नंबर 2, दूसरा ख्याल कि मुसीबत के जमाने में मसीह खुदावंद को पाने वाले और मसीहा पर ईमान लाने वाले लोगों की बात हो रही है कि अब वो लोग भी यहां पर मुकद्दस यानी सेंट्स कहलाते हैं और कहलाएंगे, यानी वो लोग जो खुदा के साथ, खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं और इब्लीस के गुमराह करने पर वो गुमराह नहीं हुए। तो मुकद्दसों की लश्करगाह। और फिर लिखा है अजीज शहर को। यहां पर अजीज शहर जब लिखा है तो नाम नहीं है, लेकिन यह शहर यरूशलेम की तरफ इशारा है। इसराइल को मुकद्दसों की उस जगह को जहां पर मुकद्दसीन होंगे, मसीह जो बादशाहों के बादशाह हैं, और यरूशलेम जो मसीह खुदावंद का यूं कहा जा सकता है जैसे दारुल सल्तनत होगा, उसके बरखिलाफ घेरा डालकर ये अफवाज वहां पर जमा होंगी। लेकिन इस आयत में
जरा और आगे क्या लिखा है कि मुकद्दसों की लश्कर गाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और क्या होगा, और आसमान पर से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी। अब आपने देख लिया कि अब उनके पास मजीद कोई जंग करने का कोई वक्त ही नहीं रहा, कोई टाइम ही उनके पास नहीं रहा। मैंने कहा था ना कि जंग का एक हिस्सा ऑलरेडी 1000 साल बादशाही से पहले मुकम्मल हो चुका, लेकिन अब दूसरा हिस्सा, अगरचे जंग की तैयारी थी, लेकिन जंग करने वाले खुदा जो कादर मुतलक है उसके बरखिलाफ खड़े नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि आसमान पर से आग नाजल होगी उन तमाम जूज माजूज और उन तमाम अफवाज पर जो इसराइल के ममसू मसीहा यरूशलेम और खुदा के मुकद्दसों के खिलाफ घेरा डाले होंगे उनकी तबाही के लिए। याद कीजिए कि अब की बार उनकी लाशों को चुगने के लिए या नोचने के लिए खुदा परिंदों को हुक्म नहीं दे रहा, यह ऑलरेडी हो चुका है। अब खुदा आसमान से आग नाजल फरमाकर गंधक और आग नाजल फरमाकर उन तमाम अफवाज को जो इसराइल को घेरे हुए होंगी, उन तमाम को वो सफाई हस्ती से मिटा डालेगा। क्यों परिंदों के अभी गोश्त नोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदा इस आग के सबब से उनको मुकम्मल तौर पर राख बना डालेगा। खुदा की कुदरत और उसकी ताकत का कोई और मद्दे मुकाबल हो नहीं सकता। अब उनकी लाशें मुकम्मल तौर पर जल कर खत्म हो जाएंगी। लेकिन आयत 10 क्या कहती है, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस, किनका गुमराह करने वाला, वो जो दुनिया की दीगर कौमें जिन में उसने गोया काम किया कि वो अबलीस के पीछे चले, जिनकी बाबत थोड़ी देर पहले मैं बात कर चुका हूं, उन तमाम को गुमराह करने वाला आगे लिखा है कौन, उसका नाम अबलीस है। इसका क्या इलाज हुआ, आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान, वही हैवान मुखालिफ मसीह और वो डिक्टेटर जो झूठा नबी के तौर पर यहां पर है, जो उस मुखालिफ मसीह की कठपुतली होगा, चमचा होगा। और ऑलरेडी इस पर हम बात कर चुके हैं। अबलीस भी अब वहां ही होगा। कितनी देर के लिए, हफ्ता, महीना, साल, 1000 साल के लिए? 9। इस आयत में लिखा है, और वो रात दिन अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। बाज़ उलमा का यह ख्याल है कि जब उनको गंधक और आग की झील में झोंक दिया जाएगा, जुलस कर खत्म हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। लेकिन नो, क्योंकि यहां पर जो लफ्ज
इवन यूनानी जबान में भी इस्तेमाल हुआ है, उसमें भी यही है कि अब्दुल आबाद हमेशा तलक, उस लफ्ज का कोई और मद्दे मुकाबल नहीं है कि वो हमेशा तलक अब्दुल आबाद अजाब में मुब्तला रहेंगे। ज़मानों का इख्तिताम नहीं होगा। आहो बका वहां से सुनाई दी जा रही होगी हमेशा हमेशा के लिए, यानी अबलीस को और उसके जितने भी पैरोकार हैं उनको इस गंधक और आग से जलने वाली झील में डाला जाएगा। अब एक अहम तरीन बात जो हमारे सीखने के लिए और है, और वो ये याद कीजिए कि गंधक और आग से जलने वाली झील या जहन्नम इंसानों के लिए नहीं बनाई गई थी। कोई ऐसा हवाला नहीं है कि यह गंधक और आग से जलने वाली झील इंसानों के लिए बनाई गई हो। नो, कहीं भी कोई ऐसा हवाला नहीं है। बनाया जाना, नो, यह खुदा का मकसद नहीं था। क्यों? क्योंकि खुदा का मकसद अगर यह नहीं था तो क्या था? खुदा का मकसद यह था कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे, मेरी इबादत करे, मेरी तमजीद करे। यह खुदा का मकसद था। लेकिन जब हम मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 25 बाब और उसकी 41 आयत में देखते हैं तो खुदावंद बोलते हुए ये फरमाते हैं, एक्चुअली बुजुर्ग मती खुदावंद की आवाज को हम तक पहुंचाते हुए गोया यूं कह रहे हैं मसीह के बारे में कि फिर वो अपनी बाईं तरफ वालों से कहेगा कि ए मलाउनो, तुम उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी। आमीन। किसके लिए? अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए। लेकिन ये बाईं तरफ वाले क्यों वहां पर जाएंगे? क्योंकि ये जहन्नम की आग तो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी जिन्होंने अबलीस की पैरवी की। लेकिन इंसानों में से भी वो जो खुदा की हम्द करना पसंद नहीं करते, खुदा की तमजीद करना, खुदा के पीछे चलना, खुदा की इबादत करना पसंद नहीं करते, अबलीस की बातों के पीछे चलते हैं। वो अपने आका, अपने मालिक यानी अबलीस समेत इस गंधक और आग से जलने वाली झील में जाएंगे। तो बात क्लियर हो गई कि खुदा का कतई तौर पर यह मंसूबा नहीं था कि इंसान को जहन्नम में भेजे। और ये जो गंधक और आग से जलने वाली झील है, ये अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी। लेकिन चूंकि इंसान अबलीस की बात को मानता है, जिस सबब से वो अपने मालिक यानी अबलीस समेत उस गंधक और आग से जलने वाली झील में जाएंगे। और याद कीजिए कि मुकाशफा की किताब में तकरीबन 4 बार गंधक और आग से जलने वाली झील का जिक्र हुआ है। आप 19 बाब की 20 आयत में देख चुके हैं। 20 बाब की 10 आयत जो हमने अभी देखी, इसमें भी यह बात मौजूद है। 20 बाब की 14 आयत में भी हम देखेंगे और फिर 21 बाब की 8 आयत में भी जब हम वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे। याद रहे कि गंधक और आग से जलने वाली झील के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं, मुख्तलिफ अल्फाज में इसको प्रेजेंट किया गया है। मसलन हमेशा की आग, यह भी उसी की तरफ इशारा है, या
अबदी अजाब, यह भी उसी की तरफ इशारा है। आग और गंधक से जलने वाली झील या आग और गंधक का अजाब या आग की भट्टी, 19 बाब की 20 आयत में भी और हम 20 बाब की 10 आयत में भी देखते हैं, यह एक ही तरफ इशारा करते हैं, उस गंधक और आग से जलने वाली झील की तरफ। तो इन दो आयात से आज मैं और आप अपने लिए क्या सीखते हैं? पहली बात तो यह है कि हम किस मालिक की पैरवी करते हैं। अगर तो हम अपने मालिक खुदावंद की पैरवी करते हैं और अपने खुदावंद के पीछे चलते हैं, अपने खुदावंद की फर्माबरदारी करते हैं, अपना मन हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि तू रब का बंदा है या तू रब की बंदी है, तो फिर खुदा का शुक्र हो। लेकिन अगर हमने अपने आप को धोखा दिया हुआ है और अबलीस के साथ मिलकर हम पीते भी हैं, ताश भी खेलते हैं, खाते पीते भी हैं और गिरजे भी चले जाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि खुदावंद का हम में कोई हिस्सा नहीं है। हां, यह मैं जरूर कहूंगा कि यह पॉसिबल हो सकता है इवन ईमानदारों के लिए भी कि वो रास्ते से भटक जाए, यह मुमकिन है। लेकिन हमेशा भटके ही रहना खतरे से खाली नहीं है। तौबा का दरवाजा खुला रहता है, लेकिन बार बार उस दरवाजे को नहीं खोला जाएगा। जब हम भटक जाएं, गुनाह में गिर जाएं, सच्ची और हकीकी तौबा करके खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, तो वो हमें मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। दूसरी बात, खुदा के लोगों के लिए जिनके दिल खुदावंद के दिल के साथ धड़कते हैं, उनके लिए खुशी की बात यह है कि बिल आखिर अबलीस, जो इस दुनिया में भी हमें गुमराह और बदजन करता है, फाइनली वो वक्त आएगा कि खुदा अपनी कुदरत कामला के वसीला से उसको अबदी अजाब यानी गंधक और आग से जलने वाली झील में झोंक देगा। और आज हमने इसी से मुताल्लिक देखा है। कौन से मालिक की हम खिदमत करते हैं, कौन से मालिक की हम पैरवी करते हैं। हमारी जबान, हमारे कोलो फेल, हमारे किरदार में कहीं तजाद तो नहीं है। जब हम खुदा की हुजूरी में होते हैं तो उस वक्त तो खुदा का रूह हमें तोड़ता और मरोड़ता होता होगा और हम अपने आप को तोलते होंगे और फिर कम निकलते होंगे और फिर शायद खुदा के हुजूर हम इकरार करते होंगे, खुदावंद मुझ मुसरफ को कबूल कर लीजिए। और जब खुदा अपने वादे के मुताबिक हमें कबूल कर लेते हैं, उसके बाद की जिंदगी हमारी क्या होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खुदा को मुनाफिकों की जरूरत नहीं है, खुदा को उनकी जरूरत है जिनके दिल खुदावंद के दिल के साथ मिलकर पंपिंग करते हों। खुदावंद मुझे और आपको मालिक मसीहा की पैरवी करने का फजल अनायत फरमाए।
ख्वाह हमें कैसी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। आए हम दुआ करें। रब्बुल इज्जत, ममनून हूं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है। खुदावंद इकरार करते हैं कि आपके होते हुए भी बाज़ौकात हम आपसे दूर चले जाते हैं। हमें ऐ बाप अपने बेटे यस्सु के नाम से मुआफ फरमाइए और हमें आइंदा के लिए इंसानों की तरफ नहीं, कौन क्या कैसे करता है, बल्कि अपनी रूह और अपनी जान को बचाते हुए हम आपके नक्शे पाप पर चलते चले जाएं। शुक्र हो कि बिलाखिर हमारे दुश्मन अबलीस को हमेशा के लिए नाबूद किया जाएगा और यह कलाम हमारे लिए तसल्ली का सबब है। खुदावंद हमें अपनी पहचान, अपनी कुर्बत और अपनी नजदीकी बख्शिए और अपने साथ लिपटे रहने का फजल। आपके लोगों के लिए जो मेरे साथ मिलकर यह कलाम सीख रहे हैं, बरकत और सलामती चाहता हूं। हर मुरझाए हुए दिल में जिंदगी की लहर दौड़ आए, ना उम्मीदियों के बादल छिट जाए, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, बंद दरवाजे खुल जाएं और हर तरह का बोझ यीशु के नाम से उतर जाए। खानदान फिर से आबाद हों, नफरतों और कदूरतों के जनाजे उठ जाएं और खुदावंद अपनी मोहब्बत में हमें कायम रहने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। खुदावंद ने चाहा तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।